सबसे पहले तो मुझे क्राउन के बारे में बताएं कि एक इंसान के लाइफ में ऐसा सपोर्ट सिस्टम जरूरी होता है। बिल्कुल बहुत ज़रूरी होता है। जो लाइफ पार्टनर का तो सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा लाइफ में ज़रूरी है। देयर आर डार्क रियलिटीज Yes. अबाउट द इंडस्ट्री जो हम लोग एक फैशन इंडस्ट्री स्पेशली फॉर द फीमेल। आपके साथ कभी हुआ? हाँ, तो ऐसा हुआ है। मुझे एक ऑफर आया वेब सीरीज का, तो ही वाज सेइंग ऑन मोबाइल डेवलप नहीं था, लोगों तक कैसे पहुंचे, सोशल मीडिया नहीं सोशल था। मीडिया नहीं था। तब मेरे को ऐसा लगता है कि वी हैव सीन द टू साइड ऑफ द Two sides of the mirror. आज ये खुलासा कर देते हैं कि आप हमें ये बताएं कौन सा पेस्ट जेन्युइनली यूज करना चाहिए एक अच्छे स्माइल। Smoking is the main cause for the lung cancer, for the oral cancer. Allow me to reintroduce myself. My name is Mr. Gray. Put your hands up in the air and welcome back once again in my chat show, the podcast, The Gossip with Gray. And today we have an amazing guest along with us who is a model and already been into a pageant show and won the runner-up position and still continuing her journey in the fashion industry. But let me tell you that she is a dentist by profession. And allow me to introduce to you all my guest tonight, Sabah Usmani. Hello, hi. Hi Sabah, how Hi. are you? I'm perfectly fine. Fine. Yes. So कैसी है, मतलब आपको एज अ डेंटिस्ट मैं एड्रेस करूँ या एज अ मॉडल करूँ? बिकॉज मुझे तो लग रहा है कि मैं आपको मॉडल की तरह ज़्यादा वो एड्रेस करूँ, बिकॉज जो क्राउन आपने पहना हुआ है। सबसे पहले तो मुझे क्राउन के बारे में बताएं कि क्या आपने ये पहना हुआ है, बिल्कुल राजकुमारी लग रही है। Oh, thank you so much for your good compliment. I have won the beauty pageant, Mrs. India, Mrs. runner-up, from the Beauty and the Best magazine, Prime Communication Media, Okay. last year, 2023. 2023. Yes. So in that particular pageant show, yes. you have won the second runner. yes, yes. And वो trophy, वो crown है, वो जो आपने पहनी हुई है. जी. So guys, so this is how you know जो भी aspirant है जो वहाँ पे इस show को देख रहे हैं, and those who want to be a part of the modeling industry, तो ये जो छोटा सा क्राउन, छोटा तो नहीं बोलूँगा, बहुत प्रिटी सा क्राउन सर तक पहुँचने के लिए जो मेहनत है, वो जर्नी जो है, मेहनत जो है, वो बहुत ज़्यादा होती है। जी, करेक्ट पे Yes, yes. राइट? तो ये तो आपने बड़े शॉर्ट में बता दिया कि यार लास्ट ईयर मेरे को सेकंड रनर अप मिल गया, जस्ट अ पीस ऑफ केक। Yes. उसके पीछे की जर्नी थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, सबा के बारे में जानते हैं Yes, कि yes. सबा कौन है, सबा कहाँ से आती है। सो टेल अस अबाउट योरसेल्फ। आर यू अ दिल्ली बोर्न एंड बॉट? No, I am not Delhi born. I am born in Faizabad, Uttar Pradesh, उत्तर प्रदेश, which is now known as Ayodhya. अयोध्या। Yes. ओ, फैजाबाद से आप हैं? जी, अयोध्या से फैजाबाद आप हैं। और सो वहाँ से दिल्ली तक की जर्नी का सफ़र आप अपना शुरुआत करते हैं आपके बचपन से, स्कूल डेज से शुरू। Yeah, I have done my schooling from Canassa Convent Girls Inter College, Okay. Faizabad only, and all the schooling is done from Faizabad only. And after that, my graduation is from Rama Dental College, Kanpur, and post graduation is from Carrier Institute of Dental Sciences, Lucknow. ओके। Yes. So for the most of the time of your youth and your teen, Yes. you were in Uttar Pradesh. Uttar Pradesh, yeah. We belong to Uttar Pradesh. You belong to Uttar Pradesh. Yes. You're hailing from Uttar Pradesh. Yes. तो वो जो वहाँ से जो जर्नी फिर दिल्ली तक आई आप, जी, जी. तो दिल्ली में आप अभी कहाँ पर बेस्ड हैं? कितने सालों से? Actually, I have got my residence in South Delhi only. अच्छा। I was working with the Jamia Hamdard University, Majidia Hospital, as a consultant dental surgeon. अच्छा। Yeah, for a period of 6 years approximately. 6 years. Now I am running my own clinic. Okay, that's a super achievement which you just said, and you're running your own clinic from past how many years? From 10 years. From 10 years now, you have your own identity, own business, Yes. own work, ethics, and everything. Which you I have done masters in dentistry. Okay. Yes. You have done masters in dentistry, and you are running your own clinic, Yes. or hospital. You can Yes, say that, right? You're doing it. So, do you have a specific panel of doctors in your hospital, or you are the only one who opens? No, I am the only one. Only one, and you have the sub assistant. Yes, yes, yes. सो जो डेंटिस्ट जो लोग पढ़ते हैं, जो जी. करते हैं, मैंने कई स्टूडेंट्स जो मेरे जानकार भी हैं, वो कई जगह पे जाके काइंड ऑफ इंटर्नशिप भी करते हैं, हाँ, हाँ. तो वो भी आप प्रोवाइड कराते हैं? After नहीं internship हम नहीं कराते हैं. I am running my own clinic and I am diagnosing the patients and treating the patients and what you can say awareing the patients about the oral diseases and treating especially the oral patients who comes for oral disease treatment. Oral disease. जी जी जी.
नो वंडर कि इनकी स्माइल इतनी खूबसूरत क्यों है, क्योंकि एक डेंटिस्ट कभी भी नहीं बताता है कि वो कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करता है और हम सिर्फ ऐड में देखते रह जाते हैं कि मेरे डेंटिस्ट ने बताया, मेरे डेंटिस्ट ने। तो आज ये खुलासा कर देते हैं कि आप हमें ये बताएं कि कौन सा पेस्ट जेन्युइनली यूज़ करना चाहिए एक अच्छे स्माइल। वैसे सेंसोडाइन आजकल बहुत अच्छा है. ऑलराइट, यू आर प्रमोटिंग दैट। No, I'm not promoting that because I'm using that and it's very good for It sensitivity. really works. Yeah, it really works for sensitivity. That's a disease which we are talking, sensitivity और जो वो सब चीज़ें तो वैसे Colgate is the best. कोलगेट इज Colgate is लेकिन अगर मुझे जाना है यार, मुझे ऐसा लगता है मेरी स्माइल ना अच्छी नहीं है, मैं फटाफट सबा को कॉल करता हूँ, मैं पूछता हूँ यार सबा मुझे ना मेरी स्माइल ठीक करानी है। हाँ. तो मतलब सबा ऐसा क्या ट्रीटमेंट करती है, करेंगे? हम लोग स्माइल डिजाइन करते हैं. अगर स्माइल किसी को- डिजाइन जी, अगर किसी को ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की जरूरत है तो वो भी करते हैं. क्या होता है ये स्माइल डिजाइन? स्माइल डिजाइन ये होता है कि अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं या कुछ भी है, इस तरीके से हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट्स का. फिक्स्ड ऑर्थो होता है, रिमूवल ऑर्थो होता है, तो जो भी रिक्वायरमेंट होती है पेशेंट्स की हम उसके अकॉर्डिंग. आप मतलब आप लिटरल मीनिंग अगर मतलब किसी के भी टेढ़े मेढ़े दांत है तो उसका भी इलाज हमारे पास हो जाता है. अच्छा, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर सबा किसी को बोले मैं तेरा दांत तोड़ दूंगी तो वो प्रोफेशनली माना जाएगा? तो ये उनका काम है दांत तोड़ के ठीक करना। जी जी बिल्कुल. तो बिल्कुल है। तो दैट इज द स्टोरी बिहाइंड योर परफेक्ट स्माइल. सो अब इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम आई गेस कि आप दिल्ली में सेटल्ड है, साउथ दिल्ली में सेटल्ड है. यू हैव अ फैमिली? Yes, I have got my family over here only, South Delhi. हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली? My kids are there and my husband is there, but my husband is working in Dubai. दुबई? Yeah. ओह ऑलराइट, ओके. सो समझ में आ रहा है कि कहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है चीज़ें. ओके. तो so he's in Dubai, he's working there. So how many times he travel in a year? Once a year. Just once a year? Yeah. Last month And how many times you travel to Dubai? I have been there in August. 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 So see, that is the difference कि आपका यहाँ से वहाँ जर्नी ज़्यादा होता है, फिर वहाँ जाके आप दुबई मॉल में शॉप करते होंगे. जी, जी. उसके बाद फिर आप दिल्ली वापस आते होंगे, अपना वार्डरोब सेट करते होंगे. तो yeah, it's a beautiful place. Yeah, it's a very beautiful place. It's a very neat and clean place. Very neat and बहुत ही खूबसूरत जगह बहुत है. खूबसूरत जगह. Exactly. If anything which is made Even up of I am also trying to settle in Dubai. Yeah, in Dubai. Very And nice. for that, I have to give this Dubai Health Authority exams. So I'm So you are in process to, yeah, I'm in process to do that. and how supportive and how loving My your husband is very supportive. He's a very cute guy. He's a very nice guy. What's his name? Let's mention it. It's Kamran Kadri. Kamran Khan. Yeah. Kamran Saab, for the support and the kind of care. He which has you show. always supported me a lot, financially as well as mentally. Wow. So Kadran, right? Kamran. Kamran, sorry, I'm so sorry. कामरान जी से आपकी जो शादी हुई है वो क्या मतलब, is it Arranged marriage. arranged marriage? Yes. So you fell in love after that. Yes. Right? And you are Obviously. no regrets at all. No. So see, कहते हैं कि जो जोड़ियाँ बनती है वो खुदा ऊपर से बना के भेजता है. Do you believe in that? Yes. You I believe that. You believe that? Yes. So kind of support which your husband gives you, Mr. KK, I will say that. So, KQ, sorry, Kadri, right? So कादरी साहब जो आपको जो सपोर्ट करते हैं, तो आपको लगता है कि एक इंसान के लाइफ में ऐसा सपोर्ट सिस्टम ज़रूरी होता है? बिल्कुल बहुत ज़रूरी होता है. क्यों? एक फीमेल की लाइफ में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों? होता है, क्योंकि विदाउट सपोर्ट यू कांट डू एनीथिंग इन योर लाइफ. But why do you कभी think कभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी स्टेजेस आती हैं लाइफ में कि हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो हमें कोई ज़रूरी होता है हमारी लाइफ में कि कोई हमें मोटिवेट. तो कादरी साहब जैसे आपको जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, या ऐसा कौन से वो टिप्स हैं, क्योंकि जितने भी लोग देख रहे हैं उनके भी हस्बैंड्स होंगे, और जो हस्बैंड्स देख रहे हैं उनको भी एक टिप मिल जाएगी भैया हमें वाइफ को कैसे मोटिवेट और सपोर्ट करना चाहिए. कभी कभी मैं बहुत डिप्रेस्ड हो जाती थी इन सब चीज़ों को लेके, क्योंकि अपने ही रिश्तेदार बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलते थे. जब मैंने ब्यूटी पैजेंट में पार्टिसिपेट करा, बोलते थे कि इस लड़की का कैरेक्टर नहीं ठीक है, या कैरेक्टर पे बहुत ज़्यादा लोग वार करते हैं, कहते हैं कि नहीं ये गलत है, ये ऐसा करती है, ये वैसा करती है. अच्छा. लेकिन मेरे हस्बैंड ने हमेशा मुझे मोटिवेट करा कि लोगों की बात मत सुनो, तुम बस अपना काम आगे करती जाओ और आगे बढ़ती जाओ, और बिलीव इन योर सेल्फ. बिलीव इन योरसेल्फ, राइट? और अपने ऊपर भरोसा रखो, और ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखो, अपने खुदा के ऊपर भरोसा रखो. और जब तुम गलत नहीं हो तो किसी के कहने से क्या होता है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए.
किसी के कहने से। कादरी साहब ने तो बिल्कुल फिल्मी तरीके से आपको पूरा मोटिवेट करा हुआ है। आई थिंक फॉर एनी पर्सन, नॉट ओनली फीमेल और अ मेल, आई थिंक वी एज अ ह्यूमन वी ऑल नीड सपोर्ट एट सम पॉइंट इन टाइम। मे बी कुछ लोग होते हैं वो शायद दे आर नॉट वोकल अबाउट इट कि नहीं मुझे अभी सपोर्ट चाहिए, मैं बहुत डिप्रेस हूँ। आई थिंक खुद से ज़्यादा दूसरा एक कोई इंसान ऐसा होना चाहिए कि जो देख के और समझ जाए कि हाँ यार ये परेशान है, ये परेशान, तो इसको मैं जो है थोड़ा केयर करूँगा या फिर मैं इसके साथ हूँ, है ना। तो ये भाव मेरे ख्याल से दोनों फिर तरफ से एक जो लाइफ पार्टनर का तो सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा लाइफ में ज़रूरी है, जो वो आपको समझे और आपकी अच्छाइयों को समझे और आपको सही राह दिखा सके। सही राह दिखा सकते। एग्जैक्टली। और अभी तक आपको सही राह दिख रही है अब बिल्कुल सही राह दिख रही है, और आप सही राह पे चल बिल्कुल सही राह पे चल रहे हैं और आगे चलने की कोशिश भी कर रहे हैं। जी जी ठीक है। तो जो अभी आपने जो पेजेंट अभी जीता है जी, जी। 2023 में, इट वाज अ सेकंड रनर अप। ये सो थोड़ा निजी सवाल है, वो ये है कि रिग्रेट हो रहा है कि यार मैं विनर क्यों नहीं बनी, या मैं फर्स्ट रनर अप क्यों नहीं बनी, या मैं क्या कमी नहीं, मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है। मैंने जितनी मेहनत करी थी उसके अकॉर्डिंग मुझे मिला। और लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि पार्शियलिटी होती है इस फील्ड में, कभी कभी ऐसा लगता है। हाँ, क्योंकि आपके जो आपने जिस वट एवर द लीग इट वाज, जो भी आप कंपटीशन था उसमें थी पार्शियलिटी, या वो वाज इट अ फेयर? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पार्शियलिटी थी, लेकिन अब कितना सच्चाई है इसमें मुझे नहीं पता है। लेकिन मैंने आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट। मैं अपने बारे You में have given your 100%, right? आई हैव गिवन माई You 100। do not have any regrets कि यार मैं ये करती तो शायद ये हो जाता, वो करते तो नहीं, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। हमने बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, बहुत पैर तोड़े, हील्स में पैर तोड़े, और वो काफ़ी दिनों तक हमने रिहर्सल करी। हमारे कोरियोग्राफर ने हमें इतना ज़्यादा भगाया, इतना ज़्यादा दौड़ाया, पूरे पूरे दिन हम हील्स में खड़े रहे, हमारे पैर दर्द होते रहे, लेकिन हमने अपना लेवल बेस्ट दिया, 100% दिया। सो अब जैसे जो जर्नी अभी आप, मैं पूछने ही वाला था, आपने बताया कि आप पूरा दिन हील्स में खड़े हैं, क्योंकि जिस दिन आप एज अ मॉडल बनने का आपने फैसला किया होगा और आप इधर पहुंचे होंगे जी कि यार हाँ चलो, और मॉडल्स के साथ जब लाइन में लगे होंगे जी उस दिन, और जब सेकंड रनर अप आप जब बने और स्टेज पे जब आप खड़े हुए थे उन्हीं लोगों के साथ लाइन में, वो जो सफ़र है, कि जब उससे पहले तो आई एम श्योर कि फ्लैट्स पहनने की आदत ज़्यादा रहती है, आप एक यू आर अ डॉक्टर, आपको इधर उधर ट्रैवल करना है, आपको पेशेंट से बात करनी है, तो आपका पूरा जोन अलग है। जी यू आर ऑल्सो इन दैट लैब कोट मोस्ट, यस और वहाँ से आप सीधा हील्स पे आ गए, शॉर्ट ड्रेसेस पे आ गए, गाउन्स में आ गए, गाउन्स पे आ गए, और हैवी ज्वेलरी पे आ गए। तो क्या 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 कुछ गुजरता है एज अ प्रोफेशनल, क्योंकि वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं जो अलग प्रोफेशन से आते हैं, आप भी वहाँ खड़े, तो वो फीलिंग क्या है? कुछ नहीं, वो फीलिंग ये है कि हमें सबसे अच्छा दिखना है, हमें इस भीड़ में बहुत आगे बढ़ना है और कुछ करके दिखाना है लाइफ में, और सबसे अच्छा करना है। एक हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि इतने सारे रैम शोज़ वगैरह में हम पार्टिसिपेट कर चुके हैं कि हमारा जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो बहुत आगे तक जा चुका है। 2000 पहले शुरुआत में हम बहुत ज़्यादा डरते थे और कहीं भी खड़े होने में या कहीं भी बोलने में, लेकिन अब इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि अगर कहीं पे भी हमको खड़ा कर दिया जाए तो हम इजीली विदाउट एनी हेजिटेशन। खैर मुझे तो नहीं लगता है कि मुझे नहीं लगता कि वो कॉन्फिडेंस की कमी आपको पहले भी रही होगी, यू आर अ डॉक्टर। और नहीं, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी। हाँ, एज ए इन मेडिकल प्रोफेशन तो वो तो हमें इतना कुछ सिखाया जाता है इतने सालों में कि हमें दवाएं कैसे लिखनी है, हमें पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करना है, वो तो हमें अपने प्रोफेशन में जैसे जैसे हम कहते नहीं है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो हम जैसे जैसे ये प्रैक्टिस करते हैं हमें वो चीज़ें आती जाती हैं। लेकिन ये जो फील्ड थी हमारे लिए बहुत ही नई थी, कभी हम रैम शोज़ हमने नहीं किए थे, कभी हमने इतने सारे लोगों को, ऑडियंस को फेस नहीं करा था। तो अब हमें ये लग रहा है कि जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाए। एग्जैक्टली। तो कादरी साहब थे उस वक्त 2023 में? वो नहीं थे, लेकिन वो ऑनलाइन बने हुए थे जब ये चल रहा था ये सारा कुछ। क्या रिएक्शन रहा था कादरी? और बहुत अच्छा उनका रिएक्शन था, वो बहुत खुश थे। दुबई से जब हम करने तो लगे यस हो गया। नहीं नहीं, यू कैन डू एनीथिंग। हमेशा कहते थे यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ, आई एम ऑलवेज विद यू, एंड बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन गॉड। सो जब आप ये पेजेंट जीतने के बाद आपने डेफिनेटली ट्रैवल तो किया होगा, या फिर वो यहाँ पे आए होंगे? नहीं, मैंने ट्रैवल करा। अब ये क्राउन लेके चले गए थे सीधा? नहीं, क्राउन लेकर नहीं गए थे, मैंने उनको ऑनलाइन दिखा दिया। दिखा दिया।
उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या था आपको? मेरी मैगजीन वगैरह में भी पब्लिकेशन हुए थे, तो वो सब भी मैंने उनको दिखा दिया था, हमको सेंड क्या क्या रिएक्शन? नहीं, बहुत अच्छा लगा उनको। बहुत अच्छा। हाँ, कि कुछ तो तुमने लाइफ में अच्छा किया, मतलब क्या रिकग्निशन मिला, बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिला। अगर आप मेरा नाम जो है गूगल पे टाइप करेंगे, डॉक्टर सबा उस्मानी, आपको फौरन आ जाएगा उसमें लिख के। सबा विनर ब्यूटी पैजेंट, मिसेस इंडिया, रनर अप, सारी चीजें आ जाएगी। सारी चीज़ें आ जाएगी, So विद फोटोग्राफ आ get जाएगा। photograph. Those who want to know more about Sabha Usmani, what you need to do, you know that she has already told you that. You go to Google, just type her name, and you will get to know more about her. And definitely, this podcast is going to explore more about Sabha Usmani. That we are going to know more about her. So, talking about this, let's talk a little bit different about this the pageant जो आपने जो जीता है। तो आप कई सारे जो बच्चे जो आजकल मॉडलिंग लाइन में आना चाहते हैं, यू हैव स्टार्टेड लिटिल Yes. राइट, आपने Yes, बहुत yes. सालों के बाद किया। तो जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर इस तरफ इंक्लाइंड होते हैं। तो पहला मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा था, जब आप बच्चे थे, व्हेन यू वर इन योर टीन्स एट दैट टाइम, तो ये शौक तो तब भी रहा था? ये शौक थे तब पर भी बहुत ज़्यादा था, तब बहुत कि कुछ करते हैं life भाई कि आज भी आप में वो जोश है कि मेरे को करना है और आपने किया, किया। राइट? तो लेकिन उस टाइम बहुत सारी बाउंड्रीज, हाँ, रिस्ट्रिक्शंस क्या, चैलेंज क्या था आपको? नहीं, पेरेंट्स की तरफ से भी बहुत ज्यादा Just restrictions parents, थे। yes. सब कहते थे कि नहीं, इस फील्ड में बहुत एक्सप्लॉइटेशन होता है, वुमेन्स के साथ में, गर्ल्स के साथ में नहीं जाना है, ये फील्ड अच्छी नहीं है। सेकंड आई गेस टेक्नोलॉजी आल्सो, हाँ, टेक्नोलॉजी ऑल्सो, राइट? उस टाइम पे इतना हमारे को टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी, डेवलप नहीं था, लोगों तक कैसे पहुंचे, सोशल मीडिया नहीं था। मीडिया नहीं था। और आई थिंक आप में हम लोग सब, मेरे को ऐसा लगता है कि वी आर फ्रॉम द जनरेशन जो हमने दो साइड, we have seen the two sides of the mirror, sides of the right? mirror. Yes, yes. Right, we have seen this, we have seen that also. We know how the transistor work. Yes. Now we know how iPad works. iPad works. So- Now we have seen Yeah, but this generation, the kids, maybe a 10-year-old or 5-year-old or 12-year-old, they might not aware कि वो क्या होता है. That's just a fictional gadget for them कि क्या चीज़ है. But we have used it, we have experienced that. Yes, When I was young, तो मेरे को पता है रेडियो कैसा होता है, चलता है क्या है ये वो. तो वो चीज़ है. लेकिन अच्छी बात ये है कि अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जी जी, और ना सपनों में, ना किसी चीज़ को अचीव करने में, अचीव करने में, कुछ भी करने में. कुछ भी मतलब करने में। आप आज के टाइम में आपके पास कुछ भी हो, अगर आप अच्छे कुक हो वो भी आप कर सकते सकते अगर आप अच्छे कंस्ट्रक्टर वर्क करो आप उसको भी डेवलप कर सकते अगर आप वास्तु में हैं तो वास्तु- आप वो देख सकते हैं, because- न्यूमरोलॉजी में है, एस्ट्रोलॉजी में है, Right. आप किसी भी फील्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं और सोशल मीडिया पे आप आ सकते हैं, Right. और अपनी आपके पास जो भी नॉलेज है वो आप दूसरों में भी बांट सकते बांट हैं। सकते एग्जैक्टली, Easily. बिकॉज इट्स क्या बोलते हैं, नॉलेज बेस होंगे, राइट? कि आप एक बहुत बड़ा नॉलेज बेस, एक बाइबल है यूट्यूब जिसको हम बोलते हैं, जो ये भी हमारा भी यूट्यूब इवन माई सन इज 7 years old एंड ही यूज्ड टू से कि मम्मा क्यों नहीं एक यूट्यूब चैनल खोल लेते हैं, उससे बहुत सारे पैसे आते हैं और अपनी नॉलेज आप और लोगों में भी बांटिए। इट्स अ वेरी फेयर हाँ, he is such a small child, 7 years old, and he is saying कि But he's नहीं, smart. हाँ, he is very smart. मम्मा आप इससे पैसा भी कमा सकते हो, बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं। So on that note, I think you should, go ahead and start your own channel. Why not? Yes, yes. Because you can talk about your Or dentistry, dentistry, you part. can talk about upon your- oral cancer also, because I have done my masters in oral cancer. Okay. Yes, So it's a very dangerous disease, I guess. yeah, oral cancer. And how? What is the reason? What is the cause? The cause ये है, tobacco chewing है, पान मसाला chewing है, betel nut chewing है, smoking is the main cause for the lung cancer, for the oral cancer. लेकिन तंबाकू, पान मसाला, गुटखा, More. ये लोग ज़्यादा खाते हैं, इस वजह से ही लोगों को ओरल कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप देखिए जो टोबैको का जो सैशे होता है उस पर लिखा भी होता है कि टोबैको इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन फिर भी लोग कंज्यूम Ugly photos that. फिर भी लोग जो है कहते हैं कंज्यूम करते हैं। तो इंडिया में अभी लोगों में अवेयरनेस नहीं है अभी से मैं एक अजीब सा एक सवाल पूछने वाला जी। हूँ। वो ये है कि जैसे आप तो ये तो आपने बहुत अच्छी बात करी कि नहीं करना चाहिए, आप साथ साथ एक लाइमलाइट में भी आ गए हो जी। पिछले 2 साल में जी कि वो है फैशन। जी, अब आप फैशन इंडस्ट्री में आए हो, दैट मीन्स यू आर अ पार्ट ऑफ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। यस When we talk about entertainment industry, we have seen lot of big actors Yes. who are endorsing such pan masalas. Now, my question is कि आप
लाइमलाइट वाला इंडस्ट्री के भी पार्ट है, बिकॉज आपको पता है कि इंडस्ट्री, क्योंकि आपका मन है कि मैं भी कुछ बनूं, और आप बनोगे भी और आप कर भी रहे हो उसको। बिल्कुल। दूसरा, आपको रियलिटी पता है एज अ डॉक्टर कि यार कितनी चीज़ खराब है। तो एज अ फैशन पर्सन, नॉट एज अ डॉक्टर बट एज अ फैशन पर्सन, अगर आप एज अ मॉडल मेरे सामने हैं और आप इंडस्ट्री के पार्ट हैं, तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि यार आप ही के जैसे लोग जो है, जो एक्टर मॉडल हैं, वो तो एंडोर्स कर रहे हैं पान मसाला को, और आप तो डॉक्टर भी हैं साथ साथ। तो आप जब डॉक्टर भी है साथ साथ और आप ही के इंडस्ट्री के लोग भी काम कर रहे हैं, तो क्या आपको कल को मौका मिलता है कि हम आपको जो है इतने करोड़ रुपए देंगे, आप प्लीज पान मसाला को एंडोर्स करो, तो आप एज अ डॉक्टर सोचेंगे या एज अ मॉडल सोचेंगे? नहीं, मैं एज अ डॉक्टर सोचूंगी, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन है और मैं कभी भी लोगों को मिसगाइड नहीं करूंगी, क्योंकि ये मेरा जो है कहते हैं धर्म भी है, बीइंग अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। क्योंकि मैं जान रही हूँ कि ओरल कैंसर की वजह से लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती हैं, उनके पूरी फैमिली तबाह हो जाती है। जो कमाने वाला आदमी है वो चल बसता है तो उसके बच्चे ऑर्फन हो जाते हैं। तो मैं कभी भी ऐसा गलत काम नहीं करूँ। नहीं कर। तो ये आपने प्रण ले लिया? हाँ, मैंने ये प्रण ले लिया है, और कभी भी मुझे अगर ऐसा लाइफ में मौका आता है तो मैं इसको डिनाई कर दूंगी। मुझे नहीं चाहिए ऐसे पैसे, नहीं। वेरी नाइस एंड दैट्स अ वेरी थॉटफुल थिंग। क्योंकि देखिए, हम जैसा कर्म करते हैं हमारे आगे वैसे ही आता है। तो जहाँ से आए हैं वहाँ वापस भी एक दिन जाना है। तो ऐसा कोई भी काम नहीं करना है कि जब हम परमात्मा के सामने खड़े हों तो हमें सर झुका के खड़ा होना पड़े, शर्मिंदा ना होना, शर्मिंदा नहीं होना पड़े। तो सर दुनिया झुके लेकिन रिस्पेक्ट, रिस्पेक्टफुल तरीके से झुके, और कभी भी हम ऐसा कोई गलत काम ना करें जिसकी वजह से हमें शर्मिंदगी महसूस। गलत काम ये है कि हम लोगों में गलत तरीके से ऐसी चीज़ों को प्रमोट करें, तो ये सबसे बड़ा गलत काम है ना। जो चीज़ हमारे लिए डेंजरस है वो डेंजरस है। जो चीज़ हमें ओरल कैंसर हमारे कर रही है वो तो कर ही रही है ना। ऐसा तो है नहीं कि नहीं कर रही है। तो ये आप देखिए कि सैशे पे भी वार्निंग अच्छी खासी लिखी रहती है, और इंडिया में तो बहुत सारे लोग हैं जो ओरल कैंसर से सफ़र कर रहे हैं। और इवन अगर मेरे पास आगे फ्यूचर में, मैंने सोचा है कि अगर मेरे पास पैसे होते हैं तो एज आई हैव डन मास्टर्स इन ओरल पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, तो मैं चाहूँगी कि एक ओरल कैंसर का ज़रूर मेरा अस्पताल हो जिसमें मैं लोगों के लिए फ्री में इलाज कर सकूँ। मेरा एक बहुत बड़ा ये सपना है। ऊपर वाला बस मेरा ये सपना पूरा कर दे। I wish you all the luck with that, and I really कि जिसमें लोगों का इलाज फ्री में हो सके, क्योंकि बहुत सारे लोग गरीबी की वजह से इलाज नहीं करा पाते हैं अपना ओरल कैंसर का। correct. जी, तो ये it's a very noble thought which Yeah. you are saying, and it's a क्योंकि very दुनिया से कुछ अच्छे कर्म भी तो लेके जाने हैं। सब ऊपर वाला आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप कितने प्लॉट लाए हैं या आपके बैंक बैलेंस में कितना, मतलब आपका कितना अकाउंट में बैलेंस था। बस ऊपर वाला आपसे यही पूछेगा कि आप दुनिया में आए हो तो कुछ किसी के लिए आपने मदद करी, या कुछ अच्छे कर्म आप अपने साथ लेकर आए हो कि नहीं लेकर आए हो। Exactly. तो मैं भी कुछ लाइफ में ऐसे ही कुछ करना चाहती हूँ। Exactly, because every deed गरीबों के लिए कुछ मदद करना चाहती हूँ, जो लोग बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते इतना महंगा ट्रीटमेंट। right. जी, तो आई थिंक दैट्स अ वेरी नोबल थॉट, और बहुत बड़ा एक थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में चल रहा है। वो विजिबल है, मुझे दिख रहा है मुझे कि सबा इज़ अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो समझ पा रहा हूँ मैं कि बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती है साइमल्टेनियसली, और ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे एक थॉट चल रहा है, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि यू आर अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु वर्क्स एंड डेवलप मल्टीपल थिंग्स इन वन गो, कि अगर मैं एक टाइम पे ये चीज़ मेरे को प्रिपेयर करनी है तो साथ साथ मुझे दूसरी भी क्या चलना है, तीसरा भी क्या करना है, चौथा भी क्या करना है। ऑल सेट ऑफ वर्क इज रनिंग इन योर deep inside your mind, and you are working upon. Yes, I'm trying my level best. What kind of person you are? Are you a lazy person or are you a very active person? I'm very active person. I'm not Describe your Sundays. आपका संडे कैसा निकलता है ये बताएं आप। Sundays. आपका संडे, आज सैटरडे है, आज आप काम करके आई हैं, ठीक है, अपने अस्पताल से, अपने क्लिनिक से आप बहुत थक हार के आई है, करीब 9 साढ़े 9 बज गए, आज ज़्यादा लेट हो गए, ठीक है, और आप थक गए हो, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है और आप सो गए खाना वाना खा के। अब संडे की सुबह उठिए, सुबह हो गई है, कोई आपको उठा नहीं रहा है, आप खुद उठ रहे हो, ठीक है, मतलब नोबडी इज डिस्टर्बिंग यू, तो आपका वो संडे कैसे गुजरता है यहाँ से बताएं। उस संडे में मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कहते हैं मैं अपने घर के काम निपटाऊँ, साथ में मैं अपने बच्चे की देखभाल करूँ, और थोड़ा सा घर को भी मतलब मुझे घर सजाना बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, और मुझे नीटनेस एंड क्लीनलीनेस पे बहुत ज़्यादा मेरा
फोकस रहता है कि मतलब मेरा घर हर चीज ऑर्गेनाइज होनी आर यू चाहिए। अनलॉकिंग द थर्ड प्रोफेशन इन यू? क्या आप इंटीरियर डेकोरेटर भी हैं? यस आप मेरा घर देखेंगे तो आप एस्टोनिश हो जाएंगे कि मैंने इतनी अच्छी तरीके से घर अपना सजा रखा है। फिर तो दिखाना ही और, बनता है, फिर तो जी डेफिनेटली बिल्कुल, यू आर मोस्ट वेलकम एट माई होम। ऑफ कोर्स एंड मुझे ये इंटीरियर डेकोरेशन में भी बहुत ज़्यादा मतलब शौक है। बेइंतहा शौक है। और आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड। आपने अपने घर के अलावा और किसके घर को? नहीं, अब ये मौका तो मुझे लाइफ में नहीं नहीं, मतलब किसी दोस्त के घर को या ऐसा तो मौका भी लाइफ में नहीं मिला। हाँ, अपनी मम्मी के घर को थोड़ा बहुत मैंने सजाने की कोशिश थोड़ा बहुत ही करी। किया उधर, हाँ, अपने घर को ज्यादा किया। अपने घर को ज्यादा ध्यान से देखिए सोनम। नहीं, एक्चुअली मेरी मदर लखनऊ में रहती है तो मेरा जाना कम हो पाता है। अच्छा, अब जो अगर हमने मम्मी का जिक्र किया है यहाँ पे, तो आपके बचपन पे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि हमेशा आपको पहले से मन था एक लाइमलाइट में आने का, और अलाउ नहीं कर रहे थे पेरेंट्स, और टेक्नोलॉजी तो चलो सेकेंडरी है, क्योंकि उस ज़माने की भी हीरोइन हम देखते हैं उन लोगों ने कैसे अपने आप को डेवलप किया। हम भी कर सकते थे लेकिन हम नहीं कर, तो उनको सपोर्ट रहा होगा, आपको नहीं रहा होगा। नहीं था। तो जो नहीं रहा सपोर्ट, जो आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट नहीं किया? नहीं, हाँ, पेरेंट्स ने हमेशा मेरी एजुकेशन पे फोकस किया और बोला कि डॉक्टर बनना है। मतलब ऐसा होता है ना कभी Because कभी। my parents are also doctors, so they. In which field? My mother is a gynecologist and father is an orthopedic surgeon, and my brother is an ENT surgeon. So आप लोग सब मिलके एक हॉस्पिटल क्यों नहीं खोल लेते हो फिर? खोलेंगे, बेटर रहेगा। खोलेंगे। और जो है कहते हैं, तो मतलब मदर एंड फादर का हमेशा फोकस रहा कि लाइफ में तुम्हें कुछ बनना है, तुम्हें डॉक्टर ही कुछ बनना है। और ये फैशन इंडस्ट्री से तो बहुत ज़्यादा मदर फादर घबराते हैं, बिकॉज आपने कभी मतलब डिड यू एवर एक्सप्रेस टू देम दैट मम्मा आई वांट टू डू दिस, पापा आई वांट टू डू दैट? उस जमाने में नहीं, इतनी हिम्मत ही नहीं, हिम्मत ही नहीं हुआ, आपने पहले ही गिव अप कर लिया कि यार बोल के फायदा ही नहीं है, क्योंकि फायदा नहीं है, क्योंकि वो मानेंगे यूजुअली नहीं। क्या होता है ना, या तो मम्मी सपोर्ट करती है या तो पापा करते हैं, दोनों में से कोई। आप में दोनों में किसी की टीम में भी नहीं थे आप? नहीं, उनको पसंद नहीं है ये लाइन। ये लाइन ही पसंद। लाइन तो जब कट टू 2023 पे जब आप सेकंड रनर अप बनते हो, और डेफिनेटली तो मेरी मदर का कुछ खास रिएक्शन नहीं था। आज भी आज भी ऐसा कोई खास रिएक्शन नहीं था। ऐसा कोई खास रिएक्शन नहीं। तो यू आर डूइंग इट प्योरली फॉर योरसेल्फ। यस यस, कि भैया मुझे सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलती है जब मैं उस रैंप में चलती हूँ, तो मुझे उस 10-15 सेकंड में जो सेटिस्फैक्शन मुझे मिलती है, मुझे कहीं नहीं मिलती। कहीं नहीं मिलता है। दैट्स माय पैशन। दैट्स योर पैशन, राइट? अदर देन इंटीरियर। बस मेरा मानना ये है कि जिंदगी एक बार मिली है तो अपने जो भी शौक है वो पूरे कर लेने चाहिए इस लाइफ। और क्या क्या शौक रखती पेंटिंग, पेंटिंग का शौक है? आर्ट्स, पेंटिंग, बहुत क्रिएटिव है आप। डिकोपाज। मुझे मेरी बहुत सारी पेंटिंग्स है, मैंने बहुत सारा कुछ बना रखा है अपने घर घर पे है सब कुछ। तो आपकी सेल्फ मेड पेंटिंग है? हाँ, सेल्फ मेड पेंटिंग्स हैं, डिकोपाज वर्क है, बहुत सारा कुछ है। मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। वाओ, दैट्स जब मुझे खाली टाइम मिलता है तो फिर मैं ज़्यादातर मिल जाता है खाली टाइम, इतने बिजी। हाँ, जैसे अपनी कभी कभी छुट्टियाँ बीच में पड़ जाती हैं या सैटरडे संडेज है, कभी मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं आर्ट्स एंड पेंटिंग्स पे बहुत कोई एक ऐसा वक्त है जब यू ना अमूमन क्या होता है कि लोग आजकल बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल अपने फ़ोन में बिताते हैं, रील्स वगैरह देखते हुए, तो वो उनको भी रियलाइज़ नहीं होता कि यार 1 घंटा कैसे निकल गया, पता ही नहीं, कुछ पता ही नहीं। लेकिन आप एज ए प्रोफेशन से आते हो जहाँ पे आप प्रोफेशन में तो बिजी रहते ही रहते हो, लेकिन जो आपके पर्सनल काम है, जो आप शौक रखती है, वो भी एक टाइम टेकिंग काम है। जैसे पेंटिंग बना, जी जी, आपको टाइम निकालना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, कैनवस रखना पड़ेगा, कलर्स रेडी करने पड़ेंगे, फिर एक मूड पे आना पड़ेगा, फिर आपको सोचना पड़ेगा और उस क्रिएटिविटी को पेंटिंग में उतारना पड़ेगा। इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। इट टेक्स, उसका वक्त मिलता है इट क्या? टेक्स एटलीस्ट 2 to 3 days टू मतलब एक पेंटिंग बनाने। कंसीव यू नो द थॉट कि वो मेरे को करना क्या है, वो सोच कोशिश करती हूँ। करते हो। कभी कभी मुझे डिप्रेशन फील होता है, या मैं कभी कभी बहुत मूड मेरा अपसेट होता है, तो मैं Impresses you? समटाइम्स लोगों के थॉट्स, लोगों के थॉट, हाँ, लोगों का नजरिया, लोगों का सोच। ऐसा क्या हुआ वाकई आपके साथ कि जो मतलब इतना इस लेवल पे हो गए कि जो आप डिप्रेस हो गए? इफ यू वांट टू शेयर विद अस। एक्चुअली अपने ही जो रिश्तेदार हैं वो बहुत ज़्यादा पीछे बैक बाइटिंग करते हैं और पीछे गिराने की कोशिश करते हैं, बिना सोचे समझे बहुत कुछ एलिगेशंस आपके ऊपर लगाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से समटाइम्स आई गेट डिप्रेस्ड, तो आई स्टार्ट पेंटिंग। विल दैट हेल्प? या इट्स रियली हेल्प्स And me a lot. अगर And the another thing, prayers.
नमाज। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हो तो कादरी साहब तो है ही, हाँ वो तो है। वो तो है ही। तो वो तो आपको वो तो देख के ही समझ जाते हैं कि क्या है, मुंह उतरा है, क्या वजह है, किसी ने कुछ कहा है, तो मैं बता देती हूँ कि फला के थॉट्स ऐसे ऐसे हैं। तो वो कहते हैं कि दूसरों की बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें अपने काम खुद करनी चाहिए। एग्जैक्टली मेरा भी आपसे यही सवाल है कि डू यू थिंक लेकिन बिना सोचे समझे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, ये नहीं सोचते कि सामने वाले की दिल के ऊपर कितनी ठेस पहुंच रही है या कितना सामने वाला हर्ट हो रहा है। बिना सोचे समझे आप किसी के बारे में जब तक आपने कोई चीज़ आंख से ना देखी हो तो अपना ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए। बट डू यू थिंक सबब अब एक सवाल ये है कि डू यू थिंक दैट कि इस दुनिया में किसी के पास इतना पावर है, किसी आदमी ह्यूमन के पास इतना पावर होता है कि वो दूसरे ह्यूमन को हर्ट कर सके? हम तो हर्ट अपने आप को खुद करते हैं ना, ये सोच कर कि यार उसने ये क्यों बोल दिया। अगर मैं ये सोचूं कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है तो आप में कोई ताकत नहीं है कि आप अपनी ज़बान से मेरे को बैठे बैठे रुला सके, क्योंकि ये तो मेरा मानना है कि यार मुझे ये बात बुरी लगी। अगर मैं बोलूँ कि मुझे सबा की बात ही बुरी नहीं लगी, मुझे सबा को सुनना ही नहीं है, मुझे तो करना ही नहीं है, ये तो वी आर कंट्रोलिंग आवर ओन बॉडी। लेकिन इफ समवन इज फिजिकली असॉल्टिंग यू, अगर आप पीछे मुड़ के बैठे और किसी ने आके आप पे हमला कर दिया, वो आप बोल सकते हैं कि यार तूने मुझे हर्ट किया, तूने मुझे मारा और मैं अपने आप को लेकिन लोग जबान से भी लोगों को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं आजकल, बहुत गंदी बातें बोल के बहुत हर्ट कर रहे हैं। तो और वो खासकर अपने रिश्तेदार, आप बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाए, हाँ इमोशनल बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत सेंसिटिव भी बहुत सेंसिटिव भी हो। यस इसीलिए आपने बोला सेंसोडाइन यूज करना, क्योंकि सेंसिटिविटी हट से आती है। एग्जैक्टली तो अब मुझे वो कनेक्शन समझ में आ रहा है। तो अभी मॉडलिंग इंडस्ट्री में मैं वापस आना चाहूँगा। जी तो ये तो हुई बहुत मेहनत की बात है जी कि आपने कैसे अचीव की। जी अब मैं कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जानना चाहता हूँ जो मेरे को थोड़ा बहुत मॉडलिंग के बारे में पता भी है, और बस मैं कंफर्मेशन, देर आर डार्क रियलिटीज Yes. अबाउट द इंडस्ट्री, जो हम लोग एक फैशन इंडस्ट्री स्पेशली फॉर द फीमेल, फॉर द फीमेल। मैं फीमेल पर्सपेक्टिव से बात करूँगा, मेल पर्सपेक्टिव से नहीं। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे होती हैं कि यार जो नहीं होनी चाहिए वो भी हो रही है इस इंडस्ट्री में, स्पेशली फॉर गर्ल। सो कोई वाकया, कोई एक्सपीरियंस आपने कभी फेस? हाँ जी बिल्कुल, मैंने भी फेस करा है। एक्चुअली जब मैंने ये ब्यूटी पैजेंट जीता और भी मैंने कुछ पैजेंट जीते। Would you like to say something about that? Have you ever experienced any dark side कि जो आपको नहीं करना चाहिए था, जो लोग इस इंडस्ट्री के बारे में गलत गलत बोलते हैं, क्या उसमें है कुछ सच्चाई? हाँ थोड़ी बहुत सच्चाई इसमें है कि इस तरीके के लोग मिल जाते हैं जो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। आपके साथ कभी हुआ? हाँ तो ऐसा हुआ है। मुझे एक ऑफर आया वेब सीरीज़ का। अच्छा। हाँ उसमें ये पेजेंट जीतने के बाद? हाँ ये पेजेंट जीतने के बाद मुझे ऑफर आया वेब सीरीज़ का। तो ही वाज सेइंग ऑन मोबाइल कि आपको वेब सीरीज़ में काम करना है तो लेकिन आपको कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आपको मेरे साथ अच्छे रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने पड़ेंगे और बिना रुके सीधा बिना कुछ भी, बिना जाने बिना समझे, और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं करेंगे तो कैसे आपको लॉन्च करेंगे आगे? really asking you to Yeah, sleep yeah. with them or stuff Yes, like yes, yes, yes. So you have to maintain a good relationship with the producer. That's they were asking. So I denied. No, I am not interested. Thank you so much. that? ऐसे लोग ऐसे लोग भी होते approach हैं करते हैं, तो कैसा, मतलब आपको बहुत मन में फील कैसा आता है? बहुत ही गंदी फीलिंग आती है, अच्छा नहीं फील होता उन लोगों के लिए। और बहुत एक्सप्लॉयटेशन भी है इस इंडस्ट्री में, तो बहुत जो भी कदम रखना है वो बहुत सोच समझ के रखना है। So do you think that कि जैसे आप यू आर इंटेलिजेंट इनफ एंड आप सेल्फ एथिक्स में बहुत बिलीव करते हैं, तो आपने तो ये स्टेप नहीं उठाया? नहीं। और जाहिर सी बात है नहीं भी उठाएंगे, ना आप ना इन नहीं इन फ्यूचर। बट बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको वो पर्दा आंखों के सामने होता है कि चलो ठीक है ये हाँ, ये कर तो लेते रहे कि हैं। शायद मुझे मिल जाए, लेकिन ऐसी सच्चाई नहीं है। ऐसी सच्चाई नहीं है तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो जो लोग ये सोचते हैं कि हाँ भाई मेरे कि को गॉडफादर जो है कि सबके ऊपर भरोसा ना करें और बहुत सोच समझ के भरोसा करें अगर किसी के ऊपर। हाउ डू वी फिल्टर, मतलब क्या टिप देना चाहोगे? फिल्टर कैसे करें, वो बच्चे कैसे करेंगे, उनको कैसे समझ में आएगा? क्या पता कि किसी को भूला कुछ बात ऐसे करके किसी जगह पे बुला लिया जाए एंड देन और रेप वगैरह हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें आजकल हो रही हैं। anything can someone drugs you or maybe take you to some lonely place or stuff Lonely like place, हाँ बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जो है, इसलिए कहीं भी कदम रखें तो बहुत सोच समझ के रखें कदम।
बिना आँख बंद करके आप मत किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर, भरोसा नहीं करना चाहिए। इसलिए कहीं पे भी कदम रखे तो बहुत सोच समझ के रखे। तो ये इंडस्ट्री इस वजह से तो बहुत बदनाम है, बहुत लेकिन बदनाम है। बहुत सारे लोग यहाँ पे अच्छे भी अच्छे भी हैं, हैं, ऐसा जो नहीं अच्छा है। काम कर भी रहे हैं। पहले शुरुआत में जब ब्यूटी एंड द बेस्ट मैगजीन की तरफ से मैंने अप्लाई करा था ब्यूटी पैजेंट में भी, तो शुरू में मैं भी बहुत घबराई हुई थी कि आई डोंट नो कैसे लोग होंगे, क्या होगा, कहाँ जाना है। इवन मैं अकेले कहीं भी नहीं जाती थी, मेरी एक सिस्टर थी, उसको साथ में ही लेके जाती थी मैं हर जगह, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा डरी थी। ये मेरा फर्स्ट टाइम था, कभी मैंने ऐसी जगह कदम रखा नहीं था, कभी मैं गई नहीं थी। तो शुरुआत में भरोसा किसी के ऊपर भी करना ठीक नहीं है आजकल के दौर में। बट राइट नाउ यू आर वेरी मच एक्सपीरियंस्ड, आप भाप लेते हो, समझ जाते हो कि समझ किसकी क्या जाते हैं कि क्या है, किसका क्या इंटेंशन है। तो फिर जब प्रीति पूजा मैम से मैं मिली तो फिर उनसे मिलके बहुत ही कंफर्टेबल फील हुआ। फिर सब लेडीज़ थे, सब ज़्यादातर वुमेन्स थे और सब साथ के ही लोग थे, तो फिर बहुत ही उन्होंने कंफर्टेबल हम लोग को फील कराया। फिर शुरुआत में तो सभी को डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे फिर हो जाता है। मतलब एक आदत हो जाती है इंसान को जज करने की। तो मैंने अभी आपका लास्ट शो तो देखा ही था, जी जी, हीरा मंडी वाला। मैंने जब आप पेजेंट की जो आप बात कर रहे हैं वो भी मैंने देखा लेटर ऑन, जी, और जब हम लोग एक दूसरे को जाने स्टफ लाइक दैट, जब आपको गॉसिप विद ग्रे से कॉल आया कि यार आप एज अ गेस्ट आए, नहीं। तो क्या फीलिंग? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और कहते हैं जब आपका कॉल आया, आई एम हाईली डिलाइटेड। रियली? Yes, yes. नहीं, बिकॉज Thank you, Grey Production, for giving this opportunity to come here. I'm highly thankful. and I am thankful to you for taking out time for us and for the show Gossip with Grey, क्योंकि हमारे लिए कोशिश मेरी और हमारे टीम की यही रहती है कि we try to interact with the people, those who or those who are in the road of achieving something, Yes, yes. not the achievers. Achievers. अब वो तो बहुत दूर की बात तो है, बहुत दूर की बात। लेकिन there are people जो जर्नी At में least हैं, they are trying to do They're something trying, in their they're life. trying. And ऐसे लोगों को हम कोशिश करते हैं कि शो पे लेके आए, उनका एक अलग पहलू दिखाएं, क्योंकि हर इंसान, एवरीबडी इज़ अ सेलिब्रिटी, एंड ये मेरा मानना है जी जी। कि एवरीबडी इज़ अ सेलिब्रिटी। आप किसी भी इंसान के साथ बैठ के बात तो आपने मेरा इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल देखा है? यस, Have you seen my profile on Instagram? of course, I've seen your work, I've seen your profile, and I want तो you आपको guys कैसा to लगा? go and see that profile, क्योंकि लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है सबा के इंस्टाग्राम का भी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। मुझे कैसा लगा वो मैं आपको बताता हूँ। मुझे तो डेफिनेटली नहीं पता था जब मैंने देखा था कि आप डॉक्टर भी हैं, जी, क्योंकि इंस्टाग्राम डजंट टॉक अबाउट दैट, Yes. इट इज़ ओनली टॉकिंग अबाउट यू एज अ फैशन पर्सन एंड अ मॉडल। yes. बात करके पता चला कि आपका घर भी बड़ा खूबसूरत है, बात करके ये भी पता चला कि आप पेंटिंग भी बड़ी अच्छी बनाते हैं, जी जी और आप इमोशनल भी बहुत है। तो ये सारी चीज़ें तो इंस्टाग्राम में नहीं थी। जी जी। जो मुझे इंस्टाग्राम में देखी वो सिर्फ ब्यूटी, फैशन, क्लोथिंग और ज्वेलरी रैम्प वॉक। एंड रैम्प वॉक एंड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। जी, सो थैंक यू सो मच फॉर योर एप्रिसिएशन। नहीं, थैंक यू, क्योंकि आप डिजर्व करती हैं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था जब हमारी फिर बात हुई, जब मुझे पता चला, ओ गॉड, आई एम टॉकिंग टू अ डॉक्टर, आई एम टॉकिंग टू अ डेंटिस्ट एंड हु इज डूइंग अ लॉट ऑफ नोबल थिंग्स, जैसे कि आप कैंप की बात कर रहे हैं जो मिस्टर एंड मिस लांबा के साथ आप कर रहे हैं, तो काफ़ी मतलब प्रोडक्टिव लोग होते हैं। क्योंकि मैं खुद फैशन इंडस्ट्री से हूँ, मैं यहाँ दिल्ली में कई लोगों से जब मिलता हूँ, हमें बैकग्राउंड का नहीं पता, जी जी लेकिन जब आप जानते हो कि किस बैकग्राउंड से, क्योंकि अच्छी बात पता है क्या, इस इंडस्ट्री में हर कोई एक बैकग्राउंड के साथ आता है, साथ आता है। पैदा होते ही वो फैशन मॉडल नहीं बनता, सबकी एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री कोई बिजनेस बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई सर्विस बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई किसी प्रोफेशन में, कोई जीरो से आ रहा है, जमीन से उठ के आ रहा है कि यार मेरे पास कुछ करने को ही नहीं था, कोई हाउस वाइफ ही है, हाउस वाइफ वो चले आ रहे हैं। एग्जैक्ट, कोई स्टूडेंट आ रहा है, कोई बिजनेसमैन आ रहा है, तो बहुत अलग अलग टाइप के लोग हैं जो अपने प्रोफेशन में बहुत हीरो है, लेकिन इधर आके बिल्कुल ही जीरो से स्टार्ट कर। जीरो से स्टार्ट। तो मैं कोचिंग भी करता हूँ, मैं फैशन कोरियोग्राफर भी करता हूँ, तो मैं शोज कोरियोग्राफ करता हूँ। तो जब मैं नए लोगों से, नए बच्चों से, या नए लोग जो मैरिड लोग हैं जो इंडस्ट्री में आते हैं, वो सब एक जैसे होते हैं, एक जैसे ही। और जब वो रैंप में पहली बार चलते हैं, जब मैं देखता हूँ उनकी गलतियाँ कि वो नहीं कैरी कर पा रहे, हील्स नहीं कैरी कर पा रहे, बॉय का जो कॉन्फिडेंस होता है, चेस्ट अप करना, चिन अप करके वॉक करना, वो सारी चीज़, पैरों में दर्द होता है, पैरों में दर्द शुरुआत में, तो वो सब एक ही, जैसे हम किसी क्लासरूम में जाते हैं तो कैसी फीलिंग होती है, आपके पापा मम्मी जो मर्जी हो, लेकिन यहाँ आप स्टूडेंट ही, स्टूडेंट। तो वो वाली फीलिंग आती है। तो काफ़ी अच्छा लगा। तो आपकी प्रोफाइल देखकर भी मुझे लगा कि
कहीं ना कहीं से आप आए थे और कुछ अचीव किया है. जी डेफिनेटली बनता तो था ही कि गॉसिप विद ग्रे में आप थैंक आए. यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस चांस टू कम हियर। डेफिनेटली. एंड हैविंग सेड दैट सबा, कि हम लोग का ऐसा नहीं है कि वी नो ईच अदर, पहले से हम एक दूसरे को एक दूसरे को जानते हैं, राइट. तो काम तो डेफिनेटली करेंगे. बिल्कुल साथ में मिलके करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल. और एंड वी मस्ट डू समथिंग फॉर द सोसाइटी ऑल्सो। for the society also, of course, we definitely with the help of God we have a platform. ठीक है. वो चाहे ग्रे प्रोडक्शन हो, वो चाहे गॉसिप विद ग्रे हो, तो हमारे पास एक मैसेज भी मैं सोसाइटी में देना चाहती हूँ व्हाट इज दैट, प्लीज टेल. कि जो भी हम कमाएं, जो भी हमारी अर्निंग हो, तो उसका कम से कम 1/4 हम ज़रूर से जो है पुअर एंड नीडी पीपल्स के लिए डोनेट करें। ये है। ये आप क्या करती हैं उसके लिए? आपका 1/4 कैसे जाता? मैं पुअर एंड नीडी के लिए की ज़रूर जो है कहते हैं मदद करती हूँ। जो भी हमारे सबसे पहले जो आसपास हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनकी मदद करूँ। किस तरीके से? फाइनेंशियली, खाना, कपड़े? नहीं, कपड़े, राशन, राशन. हाँ राशन, इन सब चीज़ों से मैं कोशिश करती हूँ कि मदद करूँ, क्योंकि हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़रूरतमंद हैं और जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमारे धर्म में भी लिखा हुआ है कि सबसे पहले आसपास के लोगों की आप मदद करिए। अगर आपका पड़ोसी भी कोई भूखा है और वो सो रहा है, सबसे पहले आप उसका जाके दरवाज़ा खटखटाइए और उसकी सबसे पहले उसको खाना खिलाइए। इसी में कहावत है ना, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम. फ्रॉम होम, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। यही बात आप कह रहे हैं कि हमें आसपास में पहले हमें देखना चाहिए कि कौन ज़रूरतमंद है, Definitely. और जो भी आपकी अर्निंग है आप उसका 1/4 ज़रूर से डोनेट करें आप हर मंथ। आप मुझे डेफिनेटली बताएं ज़रूर सबा कि जो आप ये नोबल काम कर रहे हैं, मुझे भी बताएं, क्योंकि हमें भी एक मौका मिलेगा एज अ प्रोडक्शन हाउस की, अगर हमें किसी की मदद करने के मौका मिले, चाहे वो राशन हो या कपड़े हो, डेफिनेटली हम एक प्लान आउट करते हैं. जी तो अगर आपके पास कोई एनजीओ या फिर कोई ऐसी ज़रूरतमंद लोग हैं, डेफिनेटली आप हमें भी बताएं. प्लस आप और हम मिलकर कुछ सोसाइटी के ठीक है, श्योर। शुड डेफिनेटली डू दैट. अगर आप चाहें तो मैं आपको राज फाउंडेशन की सोनिया लांबा मैम है, उनसे मिलवा दूँ, या डेफिनेटली. क्योंकि वो बहुत कुछ करती हैं सोसाइटी के लिए और मैं उनके साथ मिलके भी कर रही हूँ। वी आर गोइंग टू स्कूल्स, वी आर जो भी हमसे डोनेशन हो सकता है वो हम करते हैं। अभी हमने रिसेंटली 2 कैंप किए उनके साथ मिलके, और आगे फ्यूचर में भी पार्ट ऑफ इट. जी आप आगे फ्यूचर में भी साउथ दिल्ली में भी बहुत सारे कैंप्स वगैरह होने वाले हैं, तो हमसे जो हो पड़ेगा वो हम करें। Suppose we will donate some notebooks to the students, to the poor students, some pencils. मतलब ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ पैसों से ही करो. पैसों से ही मदद करें, आप चीज़ें भी दे सकते हैं। हाँ, ठीक है, डेफिनेटली. सपोज बच्चों को आपने बिस्किट्स बांट दिए, पेन पेंसिल से मदद कर दिया, नोटबुक्स दे दिए आपने, स्कूल बैग्स दे दिए, जो भी आपसे हो सका आप करिए, लेकिन करिए आप ज़रूर, करना ज़रूरी. बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अपने लिए जीना क्या जीना है, अगर हम दूसरों के लिए नहीं जिए, अगर हमने किसी और के लिए अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया, तो फिर हम ऊपर वाले को जाके क्या जवाब देंगे? हमें ऊपर वाले को भी तो जाके जवाब देना है। Exactly. ये So तो हम सोसाइटी को यही मैसेज देना चाहेंगे। very nice and thoughtful message. और दूसरी बात ये है कि मेरा लाइफ का मोटिव ही यही है कि मेरे पास पैसे हों तो फिर मैं ओरल कैंसर के पेशेंट्स के लिए मैं एक हॉस्पिटल चैरिटेबल खोलूँगी, जिसमें एक फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट होगी और वहाँ पे इलाज होगा मरीजों का। बस ऊपर वाला मेरी ये इच्छा को पूरी कर दे। डेफिनेटली करेगा. ऑन दैट नोट, ये तो आपके जो नोबल थॉट्स और आपके जो थॉट प्रोसेस जो आज आपने हमारे साथ साझा किया है, द काइंड ऑफ द विजन विच यू हैव शेयर्ड विद अस, वी आर एक्सट्रीमली happy and delighted to know. I'm also feeling so happy to meet you. I'm also feeling happy to work with you. Definitely, same here. And Sabha, it was really nice talking to you. काफ़ी ज़िंदगी के पहलुओं को आज हमने टच किया है इस बात करते करते, और काफ़ी सारी चीज़ों पे आज हमने डिस्कशन करी. एंड हैविंग सेड दैट, यू डेफिनेटली हैव अ ग्रेट ब्यूटीफुल स्माइल. Thank you. वी नो दैट कि वाई यू हैव दैट, और आपने हमें जो टिप्स भी दिए हैं कि कैसे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं. तो thank you so much, ladies and gentlemen. That was Sabha Usmani for you guys, a doctor and a talented model, an actor, of course. So thank you so much for giving us time and watching this show. And I'm going to come back with another guest on the another episode of Gossip with Grey. Till then, take care of yourself and bye-bye. Signing off, Mr. Greg.